So once again, a very good morning. Today, dated 15th July 2021. So we are here with a continuation of the chapter Tribal Disputes and the Vision of the Golden Age, right? So in the yesterday's class, we had recapitulated the life of these tribes before the Britishers and after the Britishers. We had just gone through how the life of these tribal people got changed after the Britishers had come to India, how the new laws were made, and how these laws made by the Britishers had adversely affected the lives of these tribal people. And the result of the British policies was that there were many of the small revolts in many parts of the country by these tribes, right? Like be it Karnataka, be it Orissa, or be it the central India. I mean, around काफी ऐसे areas थे India के जहाँ पर ये जो tribals थे, they had started having the revolts. They revolted against the British and the British policies, right? So one such kind of revolt that took place was by Birsa Munda, जिसके बारे में जब chapter start हुआ था तो some introduction was given, right? So today we will be just covering the entire case study of Birsa Munda, right? Birsa Munda जो था, he was born in a tribal clan that was, उसका नाम जो था that was Munda, और he was born in the mid 1870s. Exact date नहीं है, but yes, tentative time period जो है that is mid 1870s, right? और जैसे कि उस समय के जो traditional tribes थे, so he also he had spent his childhood in grazing the sheep, playing the flutes, या dance, I mean कहीं जो अखाड़े होते हैं जैसे जहाँ पर पहलवानी करते हैं वो कर लिया. तो ये सारे काम जैसे एक आम उस समय के जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स होते थे, तो he also had led his life in such a way, and the basic thing was that they were very poor, right? So ये काफी poor थे, जिसके कारण इसके पेरेंट्स को, इसके फादर को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, right? तो जब इसके फादर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो his father was more exposed to the happenings, or he was knowing more about the happenings that were going around in the country, right? तो जैसे जैसे ये बिरसा मुंडा जो था ये बड़ा होता गया, तो इसने ये अपने फादर से ये स्टोरी सुनता होता था कि कैसे ये जो इसके जो खुद की जो ट्राइबल क्लैन है, how they had rose to such position, right? How they are suffering under the British, right? So उसने ये भी सुनना शुरू किया कि कैसे जो उसकी क्लैन के लोग हैं, जैसे जो मुंडा कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट धीरे धीरे रिवोल्ट कर रहे हैं. उस समय जो लोग थे वो आपस में जब when they used to discuss about the revolt, or when they discussed about the uprisings that were going on, so what they used to do, they used to talk about कि अब हम रिवोल्ट करेंगे और जब रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम एक गोल्डन एज आएगी, एक जितनी भी हमारी सफरिंग्स हैं वो दूर हो जाएंगी. They even these people they also used to talk. See, जब मॉब है या जब ऐसे कुछ हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो भी करंट चीजें चल रही हैं, तो हम अपने व्यूज भी बहुत सारे डाल रहे हैं, राइट? सो उस समय लोगों के जो व्यूज थे वो ये आपस में बातें करते थे कि जब जो मुंडा कम्युनिटी है, जब वो when it will be free from the oppression of the डिकूज हमने पहले ही पढ़ा था क्या होते हैं, आउटसाइडर्स जो थे. अब यहाँ पर आउटसाइडर्स कौन से थे? ब्रिटिश, राइट? तो यहाँ पे ये बात होती थी कि जब ब्रिटिशर्स या डिकूज ये जो आउटसाइडर्स है, जब ये चले जाएंगे तो we will have a golden age, we will have a golden time, right? And that time will come when we will have the right and control over our ancestral community,
या जैसे हमारी कम्युनिटी पहले चल रही थी उसमें जो राइट्स है या अब जो लैंड राइट्स हैं या फॉरेस्ट राइट्स ये एंजॉय कर रहे थे, तो ये आगे एंजॉय करेंगे। तो ये जो बिरसा मुंडा था ये अभी ही वाज ग्रोइंग, सो व्हेन ही यूज्ड टू हियर ऑल दीज थिंग्स, सो उसके माइंड में ये चीज आती थी कि ये जो हमारी जो कम्युनिटी है दैट इज टू बी फ्री, राइट। एंड इवन ये जो उस समय मुंडा कम्युनिटी में जो भी एक रिवोल्ट हो रहा था वो ये मानते थे कि ये जो जमीनें हैं फॉरेस्ट की जमीनें हैं ये हमारी हैं, और ये लोगों को भी इंस्पायर करते थे। दे यूज टू इंस्पायर द पीपल कि ये जो जमीनें हैं ये जो फॉरेस्ट लैंड है ये सारा हमारा है, सो वी शुड फाइट फॉर इट, वी शुड फाइट फॉर इट, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ कि जो बिरसा मुंडा था ही वाज सेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, राइट। उसको उसको थोड़ा पढ़ने के लिए भेजा गया मिशनरी स्कूल में। ही वेंट देयर, और वहां पर ये मिशनरीज जो होते थे, मिशनरीज क्या होते थे उस समय, ये जो क्रिश्चियंस होते थे ये अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए दे हैड देयर ओन schools or their institutions, right, so that there they could spread their religion, right. So वहां पर भी जब ये वहां मिशनरीज में भी जाता था पढ़ने के लिए, तो वहां पर he used to listen, he used to hear कि जो मुंडास हैं they are just revolting and they will regain their lost rights. I mean जहां भी वो जहां पर वो एक्सपोज हो रहा था तो वहां पर he was just getting exposed to these ideas, right. तो वहां पर उसको क्या सिखाया जाता था कि ये जो मुंडा कम्युनिटी है वो अपने उनको राइट्स मिल सकते हैं अगर वो बहुत अच्छे क्रिश्चियंस बन जाएंगे। सी जैसे मैंने बताया मिशनरी सी वहां पर लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जाता, क्रिश्चियन टीचिंग दी जाती थी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता, राइट। सो ये बिरसा मुंडा यहाँ पर भी ये चीजें सुनता रहा। लेटर ऑन ही हैड बिकम अ प्रीचर आल्सो, राइट, जहां पर उसने वैष्णव धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। एंड ही हैड स्टार्टेड लीडिंग अ पायस लाइफ। बट इतने सालों तक जब वो उसके ग्रोइंग ईयर्स थे उस समय तक जब वो he was influenced by many of the ideas, राइट, जो भी आइडियाज उसको उसके वो सुनता था, राइट, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, जो भी बातें वो सुनता था उससे बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हो चुका था। एंड नाउ हिज एम वॉज, राइट, व्हाट वाज हिज एम, नाउ हिज एम वॉज टू रिफॉर्म द सोसाइटी, चेंजेस लेकर आने हैं, या उसकी अपनी जो क्लैन है या अपना जो मुंडा कम्युनिटी है उसको फ्री करना है, राइट। तो सबसे पहले तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट तो बाद में था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट बाद में था। उसने पहले क्या किया कि जो उसकी अपनी सोसाइटी है, सोसाइटी में उसकी अपनी जो कम्युनिटी थी, he wanted to first reform the community, then he wanted to free his community from the Britishers, राइट। तो उसने क्या किया, पहले तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को उसने कहना शुरू कर दिया दैट दे शुड गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, दे शुड क्लीन देयर विलेज, राइट, एंड दे शुड लिव अ प्योर लाइफ। जो बैड हैबिट्स जैसे आप कह सकते हैं, हम अगर अपनी लेमैन लैंग्वेज में कहें कि जो भी बैड हैबिट्स है वो नहीं होनी चाहिए, एंड वी शुड अडॉप्ट द गुड हैबिट्स। तो पहले उसने क्या किया कि उसने पहले अपनी ही जो यू कैन से कम्युनिटी थी उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, राइट। धीरे धीरे क्या हुआ कि ही टर्न्ड अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज, टर्न्ड अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड आल्सो, क्योंकि ये भी इसको लगते थे, ये लगता था कि ये आउटसाइडर्स हैं और ये लोग जो है हमारी लाइफ को या हमारी वे ऑफ लाइफ को खराब कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये हमेशा से ही एक यूनिक
कल्चर होता है इनका, एवरीथिंग इज यूनिक वन। सो ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ये लोग बहुत जल्दी अपने आउटसाइडर्स को अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो यहाँ भी जो बिरसा मुंडा था, ही टर्न्ड अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, और जो भी इसको लगता था कि आउटसाइडर्स है उसके ये अगेंस्ट हो गया था। उसके बाद अराउंड 1895 तक का टाइम आते आते व्हाट ही हैज स्टार्टेड, नाउ ही हैज स्टार्टेड कन्विंसिंग द पीपल, हिज फॉलोअर्स, दैट the we had a very glorious past, that past is to be recovered, right। क्योंकि अब जो इसकी he was a preacher, preachers का काम क्या होता है, जैसे टीचिंग्स फैलानी है, तो ये लोग बड़े अच्छे ओरेटर होते, बड़े अच्छे स्पीकर्स होते, सो दे फाइंड इट वेरी इजी टू कन्विंस द पीपल। तो अब बिरसा मुंडा के कई फॉलोअर्स हो चुके थे, many of the people were there who were the followers of बिरसा मुंडा। तो इसने अपने फॉलोअर्स को समझाना शुरू कर दिया कि अब एक हमारा जो इतना ग्लोरियस पास्ट था, दैट इज टू बी रिस्टोर्ड, गोल्डन एज आएगी, एक हिंदी में वर्ड यूज करते हैं सतयुग, जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, राइट। सो ही इंस्पायर्ड हिज ओन पीपल कि पहले तो अपनी गुड हैबिट्स, सेकेंडली जिस नेचर में हम रहते हैं उस नेचर को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। हाउ इट कुड बी डन, दैट बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, राइट। जितने भी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स हैं, या जो भी फॉरेस्ट में चीजें प्रेजेंट हैं, उसे कंजर्व करना है। तो हम कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा अच्छी चीजें जो थी वो लोगों में इनकलकेट की गई, कि that they have to follow the cultivation also, every time they cannot depend on the hunting and collecting or gathering the things from the forest, so they have to move for the cultivation also, right। so उसने trees लगवाए, उसने orchards बनवाए, then उसने cultivation के ऊपर stress दिया, उसने I mean tree plantation के ऊपर किया, then even he had even given the stress on not killing the people, I mean जो नॉन, आप कह सकते हैं ना, नॉन वायलेंस जो है उसके ऊपर इसने स्ट्रेस दिया, राइट। तो अब क्या हुआ कि जो लोग थे, जो उसकी खुद की कम्युनिटी के लोग थे, वो इससे इसके फॉलोअर्स बन गए, उन्होंने इसको मानना शुरू कर दिया। और अब ये था कि दे हैड स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द लैंड एंड दे हैड स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका बिरसा मुंडा का लोगों के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, दे लिसन टू हिम, राइट। और किस ढंग से उन्होंने अपनी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा बेटर बना दी। नाउ ये था पहले अपनी कम्युनिटी को सेटल कर, इट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट। नेक्स्ट एम वाज टू ड्राइव आउट द मिशनरीज, द मनी लेंडर्स, द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, द गवर्नमेंट, द ब्रिटिशर्स, इन सबको, ये जितने भी डिक्यूज हैं, जो ये इसके आउटसाइडर्स इसको लगते थे, इन सबको बाहर निकाल, राइट। ये भी एक उसका एम था कि इन सबको बाहर निकालना है, और ये जो कम्युनिटी था उसको फ्री करना, राइट। तो उसका जब ये एम जो ऐसा था और उसकी वर्किंग इस ढंग से थी कि ब्रिटिशर्स तक ये बात पहुंच गई कि दिस पर्सन इज हैविंग सच टाइप ऑफ एम, राइट। सो इससे क्या हुआ कि ये जो बिरसा मुंडा था, ही हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। कि जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसीज थी that were against the Mundas, that for that the people were made aware, right। उससे इतने सारे लोग जो थे उसको जो लगते थे, वो इनको बाहर भगाना क्यों चाहता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल द कम्युनिटी, मुंडा कम्युनिटी वाज सफरिंग, राइट। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के कारण, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये क्यों था, बिकॉज द लैंड पॉलिसीज, द फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल सिस्टम, राइट। हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं या मनी लेंडर्स हैं, इनको पैसे देने के बहाने इनकी जमीनें ले रहे थे। मिशनरीज के अगेंस्ट ये क्यों हो गया, बिकॉज मिशनरीज जो थे, दे वर क्रिटिसाइजिंग
their traditional culture. तो हर किसी के अगेंस्ट इसके पास रीजन था कि वो इनको अपने एरिया से बाहर निकालना चाहता. तो जब he has started, he has gathered the people, he has started the movement against the Britishers. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, सी ये ब्रिटिश जो थे वो भी एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं, इट वाज नॉट इजी रेदर टू सप्रेस देम. और उनको जब पता लगा तो नाउ दे हैड स्टार्टेड दे डिसाइडेड टू एक्ट. उन्होंने क्या किया कि इन 1805 दे हैड अरेस्टेड बिरसा और उसे दंगे फैलाने के का आरोप उसके ऊपर लगा दिया गया. और उसके बाद ही वाज जेल्ड फॉर 2 years. उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया. अब जब 1895 में, नॉट 1805, 1895 में ही वाज सेंट टू जेल. और जब ये 1897 में व्हेन ही वाज रिलीज्ड, उसने दोबारा मूवमेंट शुरू कर दिया. ऐसा नहीं किया कि उसने बंद कर दिया. अब उसने ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, और अपनी ट्रेडिशनल भाषा में जो लोकल भाषा थी उसी में लोगों को इसने इंस्पायर करना शुरू कर दिया. राइट. और ये जितने भी यूरोपियंस थे या ये डिकू थे, आउटसाइडर्स जैसे हमने डिस्कस किया, उसने इनको कैसे पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि दीज ऑल आर द रावण. राइट. और उसने लोगों को ये कन्विंस करना शुरू कर दिया कि इन लोग बाहर निकाल के हम एक अपना किंगडम बनाएंगे अंडर हिज ओन लीडरशिप. अब ये जो बिरसा मुंडा था, ये इसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर भी काफी ज्यादा था. राइट. कि लोग जो थे वो इसको ऑलरेडी अपना लीडर मान चुके थे, वो इसको ऑलरेडी अपना किंग जो है वो मान चुके. राइट. सो as mentioned कि अब जो इसके फॉलोअर्स थे, they had also started targeting the Dikus and the European power. इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया, चर्च के ऊपर अटैक कर दिया, जो मनी लेंडर्स थे उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली, जमींदारों की प्रॉपर्टी हथिया ली. एंड दे रेज द व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज. बिरसा मुंडा से ये लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि दे हैड मेड देयर ओन फ्लैग जो व्हाइट कलर का था, और इन्होंने वो उसको सिंबल बना दिया बिरसा राज. बिरसा राज मीन्स कि बिरसा मुंडा का जो है ये सारा कंट्रोल होगा. बट बिरसा मुंडा ही कुड नॉट लिव लॉन्ग. इन 1900 ही डाइड ऑफ कॉलेरा. और ये जो मूवमेंट था जो बिरसा मुंडा ने चलाया था वो थोड़ा सा वीक पड़ गया. राइट. वो थोड़ा सा वीक पड़ गया. हाउएवर आगे भी दो आई मीन ये जो मूवमेंट था चलता रहा, बट स्टिल उतने प्रेशर से या उतनी वो कह सकते हैं कि उतने इम्पैक्ट से नहीं था जितना बिरसा मुंडा का इम्पैक्ट. हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन 2 ways. That it forced the colonial government to introduce laws so that the land of tribal could not be easily taken by the Dikus, and secondly, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest. इसके 2 फायदे हुए. चाहे बिरसा मुंडा की डेथ हो चुकी थी, लेकिन स्टिल उससे ये इस मूवमेंट का फायदा ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ न्यू लॉज बनाए जिससे कि जो ये ट्राइबल्स हैं इनकी जमीनें जो हैं वो डिकूज आराम से नहीं ले सकेंगे. सेकेंडली, ब्रिटिशर्स जो थे अब उनको भी ये पता लगा कि जो ट्राइबल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं. जो ट्राइबल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं. अगर उनके साथ इनजस्टिस होगा तो दे विल बी expressing their anger in the form of such type of movements against the colonial rule. Right. And as the way these people had the movement, उनका अपना एक स्पेसिफिक वे था. और ये अब ब्रिटिशर्स जो थे एटलीस्ट इनको इस चीज का आइडिया हो गया था कि वो अपनी मर्जी इनके ऊपर नहीं थोप सकते हैं, और कहीं अगर इनजस्टिस होता है तो these people are in a position, they are strong enough to protest against the British Empire. So ये at least twofold फायदा जो था वो. Right. So here we come to the end of the chapter. In tomorrow's class we will be discussing the questions. Right.